नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। JVN प्रोफेसर मंजू शर्मा। प्रोग्राम नेम B.Ed 4th सेम। सब्जेक्ट नेम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। सेशन नेम डीफ एंड डम चिल्ड्रन। यूनिवर्सिटी नेम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। I welcome to all. Today I'm discussion session deaf and dumb children. What is the term deaf and dumb? The term deaf is frequently applied to those who are deficient in hearing power in any degree, however slight, as well as to people who are unable to detect the loudest sounds by means of the auditory organs. It is impossible to draw a hard and fast line between the deaf and the hearing at the particular point, that is overall are clear the term deaf. स्लाइडली या जिनको बहुत तेज़ आवाज़ें भी नहीं सुनाई देती है और श्रव्य से संबंधित जिनको परेशानी होती है, डीफ और डम बालक होते हैं। डीफ एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स with any degree of hearing loss or deafness which addresses their differences and individual needs. This process involves individually planned, systematically monitored teaching method, adaptive materials, accessible settings, and other interactions designed to help students achieve a higher level of sufficiency and success in the school and community than they would achieve with a typical classroom education. A number of countries focus on training teachers to teach deaf students with a variety of approaches and have organization to aid deaf student. What are the symptoms of deaf? The child who is completely deaf does not respond even to very noises, but he may notice movement and vibrations caused by sudden loud noises. Total communication, the child's own gestures, sign languages, drawing, reading and writing, finger spelling, whatever. Hearing, the child has to develop lip reading and speech. What are the characteristics of deaf and dumb children? The child may be dumb besides being deaf. The speech defects are common among children with hearing impairment. Consequently, these children are lower intelligence because they are incapable of using available opportunities. In the case of the deaf and dumb, as these words are generally understood, dumbness is merely the result of ignorance in the use of the voice. This ignorance being due to the deafness. The deaf man can laugh, shout, and in fact utter any and every sound that the normal person can. डीफ एंड डम बालक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टाइप हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता है, अपने लिप से भी वो अपना सारा वो करते हैं या फिंगर रीडिंग से, एक्शन से, संकेतों से अपना वो काम बताते हैं. इंडिविजुअल नीड्स. डीफ एजुकेशन प्रोग्राम्स मस्ट बी कस्टमाइज्ड to each student needs and deaf educators provide
a continuum of services to deaf students based on individual needs. For instance of a student in a regular class, a note taker or interpreter might be an accommodation provided in their education plan. बधिर शिक्षा से अभिप्राय बच्चों की उस शिक्षा से है जिससे बालकों को समझते हुए उनका सॉल्यूशन करना। मूलतः बालक दो प्रकार के होते हैं, नितांत बधिर या श्रवण शक्ति में कमजोर, जो श्रवण यंत्र से सुनते हैं। तो मेनली डीफ बालक जो होते हैं उनके 2 टाइप्स हमारे सामने होते हैं। अब जो कुछ सामान्य कारण होते हैं, अर्जित बाध्यता, बधिरता, जैसे कि कोई बालक बाद में जो डीफ हो जाते हैं उनके बारे में पहले हमको उनके कान के बारे में जानना कि उनके जो कान की बनावट होती है वो कैसे होती है, या जो हमारे जनरली कान की बनावट होती है उसमें कितने प्रकार होते हैं। तो जनरली हमारे कान के 3 प्रकार होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्यम कर्ण और आंतरिक कर्ण। तो बाह्य कर्ण खाज, फोड़े, फुंसी या जलने के कारण किसी बालक के डैमेज हो जाता है तो वो बहरा हो जाता है। मध्यम कर्ण में और जो बाह्य कर्ण वाले हैं वो 1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके इस कारण डीफनेस आती है। मध्यम कर्ण में 45% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बधिरता का मुख्य कारण कान का बहना, लाल बुखार होना, चेचक अगर हो गई तो उसको बहरापन आ जाना, ये उसके मध्यम कर्ण की फंक्शंस होते हैं। और नेक्स्ट उसका आंतरिक कर्ण, गर्दन तोड़ बुखार, लाल बुखार, मियादी बुखार, या अचानक पर्दे पर चोट लग गई और वो हमेशा के लिए ऑडिटरी मतलब हमेशा के लिए वो बहरा हो गया, सुन नहीं पाता है और बहरापन उसका परमानेंट हो जाता है। तो ऐसे 3 प्रकार के कर्ण की बनावट होती है जिसमें जैसे जैसे उसके कोई अचानक सडन उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है वो, और कई बालक ऐसे होते हैं जो जन्म से ही डीफ और डम होते हैं, मूक और बधिर होते हैं, वो उनके लिए स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है, पेरेंट्स को अवेयर रहने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे स्कूल्स खोले हुए हैं सब जगह, मगर आजकल नया कॉन्सेप्ट 21st सेंचुरी में इंक्लूसिव एजुकेशन का चल रहा है। तो हर टीचर को जो जनरल एजुकेशन के साथ 25% बालक को रख करके और उनके लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है वो डीफ और डम वाले चिल्ड्रंस के लिए होती है। अब शिक्षा प्रणाली में इनके 5 टाइप्स ऑफ मेथड हम प्रोवाइड करवा पाते हैं। मौखिक प्रणाली, ओरल मेथड, हस्त प्रणाली, संकेत हस्त प्रणाली जो होती मैनुअल मेथड, और आपका हस्त वर्णमाला प्रणाली, मैनुअल अल्फ़ाबेटिकल मेथड, और श्रवण प्रणाली होती है ऑरिकुलर मेथड, और नेक्स्ट है आपकी कंबाइंड मेथड जो मिश्रित प्रणाली होती है। इस तरह से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर डीफ एंड डम चिल्ड्रंस। फर्स्ट जो ओरल मेथड है वो प्राकृतिक संकेतों का प्रयोग करके शिक्षा दी जाती है। जो सेकंड मैनुअल मेथड है उसमें वर्णमाला लिखना, बोलना या हाथों से संकेत करके उनको सिखाया जाता है। और तीसरा मैनुअल अल्फ़ाबेट मेथड में बोलना, बोलकर समझना, हस्त वर्णमाला और लिखना प्रधान साधन इसमें माना जाता है। और श्रवण प्रणाली ऑरिक्यूलर मेथड में अर्धबधिर विद्यार्थी जो होते हैं जिनको सुनाई तो देता है मगर ऊंचा सुनाई देता है या वो कोशिश करते हैं, तो अर्धबधिर विद्यार्थियों की श्रवण शक्ति का प्रयोग मुख्यतः श्रवण प्रणाली में किया जाता है। और मुख्यतः वाणी, श्रवण शक्ति, लिखने का प्रयोग ऐसे उनको प्रैक्टिस करवा के संकेतों के द्वारा उनको आगे बढ़ाया जाता है। मिश्रित प्रणाली में बोलना, बोलकर समझना और हस्त वर्णमाला, संकेत, इन सब को मिक्सिंग करके कैसे लर्नर की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको बालक को समझाया जाता है। जहाँ तक परिस्थितियाँ सहायक होती है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति के अनुसार ही प्रणाली चुनी जाती है। सार्वजनिक जीवन में उचित स्थान ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि अपनी वाणी का विकास करे, भाषा सीखे
होठों की हरकत समझे और इन सब गुणों का विकास करने का अवसर प्रत्येक बधिर बच्चे को देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और स्टाफ को एफर्ट्स करना चाहिए कि उनका बालक बिना स्ट्रेस के एक अच्छे सा जीवन निर्वहन कर सके और सारे समाज के बीच वो अपना स्थान रख सके। द सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो से होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.